And you, miss? Alhamdulillah. First of all, tell me, have you done your practice work which I have sent on WhatsApp Yes. group? Yes, teacher. Yes, miss. Yes, miss. Okay. So we are going to discuss about it. I am asking one by one. Please tell me. Got it? Randomly, I am telling the name of the student and the student will tell me the answer. Got it, everyone? Assalamualaikum, miss. Walaikum assalam. Assalamualaikum, miss. Walaikum assalam. Okay, Sanan. Tell me answer number 1, 1600. Teacher 40. Okay. Abdullah Danish, tell me answer number 2, 81. 12. Oh, Sanan, I am asking Abdullah Danish. I am asking Abdullah Danish. Abdullah Danish, please unmute yourself and tell me the answer number 2, 81. Please tell me answer number 2, 81. Okay, Abdullah Danish is not responding. Abhiya Imran, tell me answer number 2. Teacher, the answer number 281. Teacher, the answer is 9. Answer is 9. Good, Abhiya. बेटा आप सब ये आंसर सुनिए और आप अपने आंसर मैच करिएगा क्योंकि बच्चे जो बता रहे हैं अब तक सही है। सिनान ने जो बताया 40 इट इज करेक्ट आंसर एंड अभिया ने जो बताया वो भी सही है। तो आप लोग नोट डाउन करते रहें अगर आप लोगों ने मिस्टेक की है। राफे टेल मी आंसर नंबर 3, 144. Miss, 144, 12. Yes, 12. And Rija, tell me answer number 4, 784. 28. 28. Sinan, Rija is right or wrong? Teacher, she is right. Okay. Abhiya, what about you? Sinan is saying correctly. Teacher, the question is 784. The answer is 28. It is the correct answer. Okay. Usman, can you tell me answer number 5, 100? Yes, can I tell? Yes, Usman, can you tell me answer number 5, 100? Okay, Usman is not in this. Tell me answer number 5, 100. 100, miss. 1 minute. Better do it fast. Mubashir, you may tell. Mubashir, you may tell, beta. Miss, 100. Miss, I was absent tomorrow. Can You I are tell? absent. Okay. Yes, Alisha Batul, tell me. 10. 10. 10 is correct answer of 5. Amsal, tell me answer number 6. 289. Miss, 17. 7070 or 1770? 1717. Okay. So, Rafe, Amsal is right or wrong? Miss, right. 17 is the answer of 289. Okay. Fatma Mohsin, tell me answer number 9. Fast. Sorry, 9 का आंसर बताइए. That is question number 7. 9. 3 correct answer. What about 64? Aryan 64. Tell me answer number 64 fast.
Aryan is not responding. Amna Sheikh, tell me answer number 864. Amna is also not responding. Miss, Okay, मिस so मैं I am 100 का asking. क्यूब रूट निकालूं? बेटा Miss, ये आपको निकाल कर रखना था, ये मैं सिर्फ आंसर पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने काम किया या नहीं किया, उसके बाद में क्यूब एक्सप्लेन करूंगी. Teacher, can I tell? Let's tell Anaya. 8. 8. Correct answer, Anaya. What about 49, Vanya? Can you tell me answer 9? 49. Vanya, I am asking from you. Fatma Mohsin, wait. मिस मुझे 49 का नहीं पता, लेकिन मैं आपको 144 का बता दूं. नहीं, मुझे 49 का चाहिए क्योंकि मैंने कल आपको होमवर्क दिया था ये, और ये टू मच इजी है. So you have to find it right now and tell me at the end of the review. Now, Okay, miss. okay. मिस Mohammad आंसर इज Zayan, 10. Mohammad Zayan, tell me question number 9, 49 answer. Fast. Anaya Masood, Aryan, Amna Sheikh, Mois, Ahmad Kabir, kindly turn on your video. Zayan, I am asking to you. आ रहा है. Usman, mute yourself. Tell me answer number 949. 49 का बताऊं मिस? Beta Usman, I am talking to Zayan. ओके. You have to wait, okay? Yes, Zayan, I am waiting. Miss square root na? Yes, of course. That means you didn't complete your task. Just fast. Zayan, that means you didn't complete your task. मिस मुझे 49 का आंसर पता चल गया. Okay, Ahmad Kabir, so you have to write your correct name because I don't know about your real name, okay? Yes, who is telling कि मुझे पता चल गया? Miss, मिस मी. Vanya, you are saying. Okay, Vanya, tell me. मिस 49 का आंसर 49 ही आ रहा है. Oh, that is not correct answer. Miss, can I tell? Miss, Yes, you Can I will tell? tell Zayan. No, Zayan will say. Miss, Zayan, 7 is correct answer. Good. Mois, अपनी प्यारी सी आवाज मुझको सुनाइए क्योंकि आप अनेबल हैं, ना आपकी वीडियो आ रही है मेरे पास और ना आपका माइक मुझे नजर आ रहा है. मोइस, आप क्या कर रहे हैं? मोइस, सही है, मैं आपकी मदर से बात करूंगी फिर. क्वेश्चन नंबर 10, 1521. Who will say the answer? Okay, Fatma Mohsin, tell me. Miss, can I tell? 39. Yes, tell me. 39. Okay, Sinan, Fatma Mohsin is right or wrong? Sinan is busy somewhere. Rija, Fatma Mohsin is right or wrong? Teacher, she is right. She is right. Abhi Imran, Rija is right or wrong? Teacher, kindly repeat. They are saying 39. Is Yes. it right or wrong? Miss, can I tell? Okay, Alisha, but tu will tell me Fatma Mohsin is right or wrong? It's right. Yes, I know Fatma Mohsin is right. Now, Usman, this is your turn again. Tell me the square root of 900. 900 का बताइए मुझे. उस्मान, 900 का जल्दी से बताइए. अच्छा मिस.
इसका मतलब आप लोगों ने इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है। अमसाल 900 Miss, का can I आंसर, tell? वेट अमसाल इज गिविंग मी। अमसाल 900 Miss 30. 30 गुड। ओके बच्चों, ऑलमोस्ट हम आप सबने मुझे सही आंसर बताए और बहुत से बच्चों ने अपना टास्क भी कंप्लीट करा है। तो आज हम न्यू टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज क्यूब रूल। क्यूब, मुझे बताइए किस किस को क्यूब आता है और क्यूब होता क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज क्यूब? ओके, मास्टर इन मैथ्स अब्दुल राफी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज क्यूब। Miss, क्यूब का मतलब क्या होता है? is cube is a 3D shape square. We can see all sides. ओ मेरे, अरे बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं ये थोड़ी ना पूछ रही थी, मैं तो मैथ्स वाला क्यूब पूछ रही थी जो क्वेश्चंस में होते हैं इन नंबर। यस फातिमा मोहसिन, टेल मी। Cube means 3. यस, क्यूब मीन्स 3। क्यूब का मतलब होता है 3, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2। अभी तक हमने जो टॉपिक किए हैं, एक हमने किया है क्यूब और दूसरा हमने एक टॉपिक अब तक हमने किया स्क्वायर रूट, और अब हम करने जा रहे हैं क्यूब। सही है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 और क्यूब का मतलब होता है 3। फातिमा मोहसिन करेक्ट। अब तक हमने स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम किए थे और हमने पेयर बनाए थे 2 मेंबर्स के, सही है। लेकिन इस क्यूब में एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पर हम 3 नंबर्स के पेयर बनाएंगे। गॉट इट? अब आप देखिएगा, मैं सिकरा एक क्वेश्चन आपके सामने अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों ने करना होगा। Teacher? जी Teacher? जी, आई एम हियरिंग, टीचर, और ना आई एम क्यूब हियरिंग। के टेबल्स भी होते हैं, स्क्वायर्स एंड क्यूब के। अच्छा जी, ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का रिवीजन, जो कि मुझे मिस फाइका ने अपडेट दी थी कि आप लोगों ने क्यूब को अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन दे रही हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। नाउ बेटा आप देखिएगा, इसे हम कहते हैं क्यूब। मैथ्स में हम ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक में क्यूब हम कहते हैं 3 को, सही है। अब आपको मिस इकरा ने एक क्वेश्चन दे दिया है, देखें ये हमारा रूट कहलाता है, आपको पता है ना ये हमारा रूट का साइन है। बेसिकली जब ये सिंगल साइन आपको नजर आ रहा होता है ना, इस साइन का मतलब क्या होता है? 1/2। इस साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/2। इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। गॉट इट? अब देखिएगा मिस इकरा दोबारा बना रही है, ये मिस इकरा ने दोबारा रूट बनाया, लेकिन इसके छोटा सा 3 लगा दिए इसके पास, सही है। जब ये छोटा सा 3 इसके पास लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है 1/3। क्या हो जाता है? 1/3। अगेन देखिए, मिस इकरा ने दोबारा से क्यूब बनाया, सही है, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, सही है। अब जब मिस इकरा ने यहाँ 4 लिख दिया तो ये क्या बनेगा? अलीशा बतुल टेल मी, अब आंसर क्या बनेगा? 1/4. 1/4, गुड। अब मेरे पास आंसर बनेगा 1/4। तो ये चीज आप बेसिकली लर्न कर लीजिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। गॉट इट? ये बता रही हूँ। ठीक है, होता है 1/3 बहुत तरह ओके बच्चों, अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि मिस इकरा ने आपको यहाँ से समझाना शुरू किया था कि ये आपका क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट। बताया ना अभी आपको,
ये आपका कहलाता है क्यूब। सही है। और इस तरह मैंने आपको सारे रूट्स के बारे में बताया कि एक छोटी सी पावर आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नजर आती है, तो इस तरह आपके जो अपॉन वाले फ्रैक्शन होते हैं वो उसी के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। यही मैंने आपको समझाया ना अभी? कौन कौन एग्री कर रहा है कि मैंने आपको यही समझाया है? जब मैंने 1/2 लिखा था तो मैंने उसे क्या कहा था? स्क्वायर रूट कहा था। तो बेटा आप लोग ध्यान से लेक्चर सुना करें, फिर उसके बाद टीचर से रिक्वायर किया करें करेक्शन की। गॉट इट? अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने, लेकिन बेसिकली टुडेज टॉपिक इज क्यूब। अब मिस इकरा आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन लिख रही हैं। टू 216 गॉट इट इज 216। अब आपने इसका क्या मालूम करना है? क्यूब मालूम करेंगे या रूट मालूम करेंगे? जल्दी से बताइए। स्क्वायर रूट मालूम करेंगे या क्यूब रूट मालूम करेंगे? क्यूब मालूम करेंगे। क्योंकि आपको स्क्वायर रूट के बाहर एक छोटी सी पावर नजर आ रही है 3 की, और मैंने अभी ऊपर बताया कि 3 मीन्स क्या होता है? क्यूब होता है। गॉट इट? अब हम देखिए एलसीएम करेंगे। वही हमारा रूल कि जब भी हम करेंगे रूट पर वर्किंग तो हमें एलसीएम करना पड़ता है। अब देखिए मिस इकरा वो ही कर रही हैं। गॉट इट? 216 अगेन मिस इकरा ने राइट किया। अब हम जज करेंगे कि ये इवन नंबर है ऑड नंबर है। तो मुझे बताइए, कोई भी बच्चा जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके बताइए, इवन और ऑड? Even number. Even number. So what table I have to use? 2. 2. Correct answer. So we are using 2 times table. So first of all 2 1s are 2. टीचर ने कल आपको समझाया था अगर 1 डिजिट टेबल है तो पहले 1 डिजिट हम देखेंगे आंसर क्वेश्चन में। तो हमें 1 डिजिट नजर आया, डेट मीन्स 2 के टेबल में 2 आता है, तो हमें सेकंड डिजिट की नीड है? नो नीड टू राइट second digit. So we are finding at what times 2 comes in 2 times table? 1 time. Okay, got it. यहाँ मैंने लगा दिया 1। देखिए अब हम दोबारा सिंगल डिजिट देखेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट में मेरे पास क्या आ रहा है? 1। इज इट पॉसिबल कि 1 2 के टेबल में आता हो? No miss. हम 16 को अब मैं 16 को लूंगी, दोनों को एक साथ ले लूंगी, और जब भी मैं 16 लूंगी 1 डिजिट के बाद अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जब भी हम 1 डिजिट अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसके बाद 2 डिजिट एक साथ लेते हैं, दोबारा सुनिएगा, when we have completed 1 digit and now we are moving to get 2 digits together, so we have to add 0 first. We have to add 0 first because we are taking 2 digits together after attempting first question. After attempting first question. दोबारा सुनिए। ये देखिए हमने फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट कर लिया था 2 के साथ सिंगल, सही है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट इफ वी आर टेकिंग 2 डिजिट्स टुगेदर, अगर हम दोबारा 2 डिजिट को एक साथ लेते हैं, दोबारा 2 डिजिट को एक साथ लेते हैं, तो रूल होता है कि पहले हम क्या ऐड करेंगे? 0। क्या ऐड करेंगे बच्चों? 0 ऐड किया। 0 ओके, 0 हमने ऐड कर दिया। अब मुझे बताइए एट व्हाट टाइम 16 कम इन 2 टाइम्स टेबल? 8. या 8। So I am writing 8 over here. Got it? देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 3 डिजिट भी एक साथ ले सकते हैं, 2 डिजिट भी एक साथ ले सकते हैं। जरूरत नहीं होती कि आप 0 पहले ऐड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम फ्री होते हैं, आजाद होते हैं, हम कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट डन हो जाता है तो उसके बाद अगर हम 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो पहले हमें 0 लगाना पड़ता है। ये मैंने बात आपको बता दी दोबारा, सही है? अब मुझे बताइए सेकेंड अटेम्प्ट में
डिजिट्स जो है इवन है या ऑड है? नंबर ऑड है इवन है? सॉरी इवन. काइंडली टेल मी द नंबर इज इवन. Teacher, one is odd and one is odd and No, Sinan. I am asking full number. Miss, Number क्या है? even. Miss, I know the answer. Even. It's even. Okay. Now we are solving more. So we are using two-step and हमेशा मैंने कहा कि फर्स्ट डिजिट वाला टेबल है तो फर्स्ट डिजिट हमने देखा 1 है, वहाँ 1 पॉसिबल नहीं है. सही है कि आई टू डिजिट्स हमने लिए तो क्या हो गया? 10 हो गया. अब बताइए क्या मैं पहले 0 लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी? मिस पहले 0 लगाएंगी, फिर उसके बाद आप 5 लिखेंगी. पहले 0 नहीं लगाऊंगी. मैंने यही अभी आपको ऊपर समझाया था कि पहले अटेम्प्ट में हम जितने नंबर चाहें ले सकते हैं, लेकिन जब पहला अटेम्प्ट डन हो जाता है, दूसरे नंबर्स की तरफ जा रहे होते हैं, तब अगर 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो पहले हम 0 ऐड करते हैं. 54 is the answer. Yeah, 54 is the answer. 5. I am writing 2 5s are 10. अब मेरे पास आ रहा है 8. 8 remember. 4. 8 remember. Okay, now tell me हमारे पास 8 रह गया है. याद रखिएगा, not only 5 is your answer. So अब मुझे बताइए कि 8 कितने टाइम्स आता है 2 के टेबल में? 4 टाइम्स आता है, तो मैंने 4 लिख दिया. ओके, now we are moving towards to realize whether it is even number, whether it is odd number. Can you tell me? Even number. So we are using 2 times table again. So 5 सिंगल डिजिट पहले हम देखेंगे. सिंगल डिजिट देखा, 5 नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा क्या आता है? 5 से छोटा 2 के टेबल में क्या आता है? युसरा will tell. Kindly mute yourself and Yusra please tell me. 5 से छोटा क्या आता है? युसरा कहाँ हैं आप? युसरा मुझे बताएंगी 2 के टेबल में 5 से छोटा क्या आता है? I am waiting युसरा. 2 टाइम्स टेबल ही है क्या मुझे 2 टाइम्स टेबल सुनाएंगी? No, Amna. I am asking from Yusra. And Muhammad Usman, don't use screen. Okay, तो आपको पता चल गया 2 के टेबल में 4 आता है, 5 नहीं आता. जब 2 के टेबल में 4 आ रहा है तो कितने टाइम्स आ रहा है दूसरा? जल्दी बताइए युसरा. जी आप सही बता रही हैं कि 1 जो है वो हम 4 को दे देंगे, और 2 के टेबल्स में 4 आता है 2 टाइम्स, और अब ये 1 4 14 हो गया, तो 14 कितने टाइम्स आता है युसरा? 7 टाइम्स. तो हमने 7 लिख दिया. अब मुझे बताइए कि नंबर जो है वो हमारे पास ऑड है या इवन है? ऑड नंबर है. तो अब मुझे बताइए मैं कौन सा टेबल यूज करूँ? 3 यूज करेंगे. देखिए स्टेप बाय स्टेप आप टेबल की तरफ मूव करेंगे. इवन अब एक बात सुन लीजिए, बहुत ख्याल से ध्यान से मेरी एक बात सुन लें. जब भी हम एलसीएम करते हैं ना, एलसीएम में इवन नंबर वाले टेबल में सिर्फ 2 यूज होता है. कभी भी एलसीएम में हम 4 यूज नहीं कर रहे होते, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर. सबसे छोटे से छोटा टेबल हम यूज कर रहे होते हैं बेसिकली एलसीएम में. तो राइट नाउ इवन नंबर में सबसे छोटा टेबल हमारे पास 2 होता है, और 2 के टेबल में सारे इवन नंबर आ रहे होते हैं, चाहे वो 8 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, सब 2 के टेबल्स में आ रहे होते हैं. सही है. जब हमने 2 का टेबल फिनिश कर लिया है तो 1 बाय 1 ऑड के टेबल की तरफ चलेंगे. 3 के बाद कौन सा ऑड का टेबल आता है? अगर ये डिजिट, ये नंबर
3 के टेबल में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल 27 3 के टेबल में नहीं आता, तो बताइए 3 के टेबल के बाद मैं कौन सा टेबल चेक करूंगी कि 27 आ रहा है या नहीं आ रहा? 5 का टेबल चेक करूंगी। करेक्ट, 5 का टेबल चेक करूंगी। अब देखिए यहाँ पर मुझे 27 नंबर नजर आ रहा है, जो कि हमने फाइंड भी कर लिया कि 3 के टेबल में 27 आता है। तो देखिए हमने यहाँ पर टेबल लिख दिया 3। अब हम फाइंड करेंगे एट व्हाट टाइम, कितने 9 आता है? 9 आता है। ओके करेक्ट, हमने लिख दिया 9। 3 9s are 27। देखिए इस तरह पढ़ते हैं इसे, 3 9s are 27। इस तरह एलसीएम के आंसर फाइंड करते हैं। 3 9s are 27। अब मुझे बताइए 9 इज ऑड और इवन नंबर? ऑड ऑड नंबर है। सो विच टेबल आई हैव टू यूज? 3 table. Okay, I am writing 3 over here and tell me at what times 9 come in 3. 3 into 3. 3 into 3 is 9. Muhammad Abdul Rafi, stop using screen, otherwise I will remove you from the class. You are not little ones toddler that I give you warning again and again. Now tell me at what table we have to use now for 3. 1. 1? How could we Miss put this three. Miss three. table? 3 ones are 3. Finally, we got this. That's it. जब ये चीज हमें मिल जाती है, तो that means हमारा एल्सियम क्या हो गया? Complete. फिनिश हो गया, खत्म हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अब हम बनाएंगे पेयर। अब मुझे बताइए पेयरिंग के लिए कितने मेंबर्स होंगे पेयर में? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं, तो 3 होंगे। 1 2। सही है। तो अभी तक हमारे कितने पेयर मिले हमें? नो, कितने पेयर मिले? 1 पेयर, 2 pairs. 2 पेयर्स। तो हमें सिर्फ 2 पेयर्स मिले हैं, तो हमने लिखा 1 टाइम 2, 1 टाइम 3। टेल मी आंसर। Mistake. You just said Teacher, 2 multiplied by 3. Teacher, 2 multiplied by 3, 6. 6। अब देखिए कि आपका आंसर इस 216 का क्यूब क्या है? 6। आपकी टीचर आपसे एमसीक्यूज में इस तरह भी पूछ सकती हैं, 216 इज द क्यूब ऑफ 6। ये 216 जो है वो क्यूब है 6 का। तो आप मुझे बताएंगे ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं टीचर यस और नो। अब दूसरी चीज ये कि इन आंसर को वेरीफाई किस तरह किया जाए, हमें कैसे पता चलेगा टीचर हमारी वर्किंग सही है या रॉन्ग है। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप किस तरह मालूम करेंगे कि आपका काम सही है या रॉन्ग है। जो आपका आंसर आया ना, फाइनल आंसर आपका क्या है? 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय Mistake 6 is 36. 36 multiplied by 6. Teacher, Miss, 216. इन तीनों का मल्टीप्लाई करें जल्दी से रफ वर्क में और आंसर बताइए। Teacher, 216. 216 है। 216 आपके पास करेक्ट आंसर आ रहा है। दैट मीन्स हमारी वर्किंग क्या है? राइट और रॉन्ग? Right. राइट है। तो वेरी गुड, यानी आपको समझ आ चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप लोग रफली करेंगे और मुझे दिखाएंगे। और प्लीज मुझे ना आप सब मुझे पक्का बता दें कॉपीज किन किन के पास आ गई है, ताकि हम कॉपी वर्क स्टार्ट करें। मेरे पास आ गई। आप मुझे ना पर्सनली ओके, आप जूम चैट रूम में मुझे लिखकर बता दीजिएगा किसके पास है किसके पास नहीं। जस्ट कॉपी बताइएगा, अगर कुछ नहीं है तो हम देख लेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, काइंडली चेक।
वैसे आप कौन सा क्वेश्चन दे रही है? क्यों? बाबा हमारे ब्रश तो दे मारो। बेटा म्यूट योरसेल्फ, आपकी पर्सनल टॉकिंग हमें सुनाई दे रही है। ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से रफली इसे सॉल्व करें और फिर मैं फाइनल आंसर भी पूछ सकती हूँ। आपको अलाउ कर दूंगी कि स्क्रीन यूज करें और मैं किसी का भी नाम बोलूंगी, वो स्क्रीन यूज करते हुए मुझे आंसर देंगे। चलिए बेटा जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालिए और मुझे बताइए। टीचर दिस इज 3375 और 3315। बेटा दिस इज 3375, ये लीजिए। यहाँ पर 3 का लेना पड़ेगा। चलिए बच्चे एक ट्रिक दूं मैं आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा टेबल यूज करना है, कौन सा टेबल यूज नहीं करना। ट्रिक दूं? यस टीचर। एक ट्रिक मुझे आती है। अच्छा, अगर आपको फाइंड करना होता है कि ये एक बिग नंबर है 3375, एक बड़ा नंबर है, क्या ये बड़ा सा नंबर आपके 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो सबसे पहले हमने 3 को फाइंड करना होगा कि ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। आता है मिस। अच्छा, कैसे पता चला आता है? मैं देखे क्योंकि 75 भी आता है 3 के टेबल में और 33 भी आता है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत मुश्किल होती है मालूम करने में। मैं आपको छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ, अगर ये आपने सीख ली ना तो बहुत आसानी होगी आपकी जिंदगी में। देखिए मैं इकरा कर रही है स्क्रीन पर, देखिए 3 + 3 + 7 + 5, ये वही नंबर है ना जो टीचर ने क्वेश्चन में दिया था। देखिए इन सब को आप सिंगल ऑल टुगेदर ऐड कर लीजिए। इनको ऐड करने के बाद सिद्धांत हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 18। 18। अब मुझे बताइए क्या ये 18 3 के टेबल में आता है? यस टीचर। अब्दुल्ला दानिश 18 फाइनल आंसर है। अगर ये 18 3 के टेबल में आता है ना तो दैट मींस ये 3375 भी 18 के टेबल में आता है। अगर ये यहाँ 18 नहीं आता एडिशन के बाद, फॉर एग्जाम्पल 19 होता, 18 नहीं आता एडिशन के बाद, सिर्फ 19 आता, डेट मींस ये 3375 3 के टेबल में नहीं आता। फिर हम कौन से टेबल पे मूव करते हैं? 5 के टेबल में मूव करते हैं। 5 के टेबल की क्या पहचान होती है सिनान? टीचर वो इवन नंबर एंड 5 नंबर। नो जी, नो सिनान, ये मैंने सिखाया था 4th क्लास में। आपने 4th क्लास मुझसे ही पढ़ी है। आप मुझे बताइए क्या था? मैं अपने तमाम बच्चों को बताती हूँ 5 के टेबल की पहचान ये होती है कि लास्ट वाला डिजिट जो होता है ना, आप देखें यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट कौन सा है? 5 है। जिस बिग नंबर के साथ लास्ट में या तो 5 हो या 0 5 हो या 0 हो, डेफिनेटली ये नंबर 5 के टेबल में आता होगा। गॉट इट? चलिए फिलहाल मुझे एलसीएम करके दिखाइए।
waiting, Sinan. Do your work. Teacher, I have done. You have Yes, done. ma'am. Okay, show me. Show me, Sinan. Sinan. Miss, I have Sinan, done. privately send me all factors. Factors बताइए सारे. Okay, teacher. Privately text कीजिएगा. जी, who is telling? Teacher, क्या चीज? यही मिस कोई मैंने चीज. आपको भेजे. Let me check, Rafe. Yes, Fatima, who can I share you? मिस आप मुझे क्वेश्चन दोबारा से समझा सकती हैं? जी समझा दूंगी. जी समझा मेरा दूंगी, आंसर लेकिन ठीक अभी है. जी अभी हम बच्चों का वेट कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दोबारा समझा दूंगी. सब्र रखें. सही है. अभी स्टूडेंट्स मुझे आंसर बता दें. आपने देख लिया मिस? बेटा लेट मी चेक. मिस प्राइवेटली भेजा. Yes, I am checking. Miss, I also give you the answer. I am sending again. Yes, I am checking. No need to send again. Abhi Imran, answer is correct. Abdullah Danish, answer is correct. Amsal, unfortunately, your answer is wrong. Do it again. दोबारा करिए अमसाल. Abdul Rafe,